Welcome to all the participants. Our speaker of the day, CA Ankit Garg and Secretary of GWCCA, CA Asha Sharma ji. Welcome to everyone. GWCAA Unnati Manch platform is for professional knowledge and upgradation. And in this continuation, we are conducting 7 days learning series in GST. Today's topic is export and refund under GST, which will be deliberated by Ankit Garg ji. I would like to welcome Asha Sharma ji. She is a fellow member of ICI having more than 14 years of experience. She is co-founder and secretary of GWCCA. CAA. She is also the executive member of Sales Tax Association Delhi. Welcome, Asha ma'am. Thank Hand you. over to Thank you, you. Renu. Welcome everyone to this series of GST refresher series. And today, sixth day है हमारा. अभी तक हमने कुछ चीजों को कवर करने की कोशिश की है, लाइक रजिस्ट्रेशन, आरसीएम एंड टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा कम हुआ था हमारा, बट टाइम ऑफ सप्लाई वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपरली. And apart from that, returns and record maintenance and input tax credit. आज that we are going to learn about the exports and refund. एंड उसके लिए बहुत ही लर्नेड स्पीकर हैं हमारे साथ, अंकित गर्ग जी. थैंक यू अंकित फॉर गिविंग योर टाइम. एंड अंकित जी के लिए एक चीज कहूंगी कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट और रिफंड में नहीं है, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी है, तो मैं ये लिबर्टी ले रही हूँ अंकित की वो अपनी क्वेरी रख सकते हैं. एंड आप टाइम Yes, yes, रहे तो आप definitely. उसको आंसर करें. तो अगर किसी की Definitely. कुछ और भी रिलेटेड क्वेरीज हैं, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड किसी की अनरिजॉल्व रह गई हैं, एक दो मेरे पास व्हाट्सएप पे अलग से आ रही थी कुछ क्वेरीज की, हमने यहाँ पे खरीदा, ये एड्रेस दिया तो क्या आएगा. तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स एंड वी विल ट्राई कि आफ्टर द टुडेज टॉपिक वी विल ट्राई टू कवर दोज क्वेरीज ऑल्सो. तो आप अभी तक जो सेशन हो चुके हैं उससे रिलेटेड भी अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ अगर अंकित हैं तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इनका फायदा उठा लें अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में. तो आई होप कि you are getting good learning from this series, and with these words I again hand over to Renu for the further proceedings. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I would like to welcome CA Ankit Garg ji now. CA Ankit Garg ji is FCA LLB postgraduate DISA AI level 1 certified and in practice from last 16 years. And he deals with various kinds of GST and related assessment matters, appeals, and various other matters of indirect taxation. Welcome, Ankit Garg ji. The stage is yours, and we are waiting to hear you. Thank you, everyone, and thank you, team GWCA. And this is a very good start that GWCA has been started a GST series, which is GST is a topic which require lots of knowledge to gather at every stage of the year, I say, because lots of changes are coming and lots of things are going on. And in that series, you have already covered many topics which I have seen in a list. So, place of supply was been covered by Rohit sir, which may play a very vital role at the time of export and import. So, one thing I say, I thanks Asha ji, Renu ji, all team of GWCAA to organization of this to organize this program, and I thanks that they have given me an opportunity for this deliberation to speak on a topic export and import under the GST. I welcome everyone, and what I am looking for, there is a very senior person in our video coming, Ashok Kumar Shekri ji. Sir, I welcome you, and I welcome everyone, and now I request everyone that you should raise a query, as Ashaji told, about any topic which you are feeling having an issue in GST. In respect of 9 and 9C also we can discuss. We will spare a 20 minutes time at the end, and in that I will try to cover each and every query which you are there, which is unsolved. And now we start this deliberation in a mode that we are on a discussion stage.
not I am giving the deliberation and participants are listening. There is a discussion going on, and we are live at the time of this 1 hour for today deliberation. And we use chat box for that live practice. When I ask you people to give yes or no what you are understanding, because वॉइस तो सबकी आएगी नहीं ना, बिकॉज म्यूट पे है हम सब लोग, वो चैट बॉक्स हम लोग यूज करेंगे फॉर अ थम अप, फॉर अ थम डाउन, फॉर द क्वेरीज, फॉर द chit and chat between this deliberation. So I am with taking permission, I am sharing one PPT which I prepared for today deliberation. I hope the PPT is able to view, everyone is able to Right view now, the your PPT. computer screen is visible. Oh, just a second. If it is opening, I guess. Now it's live. Yes. Now it's fine. So today topic is import and export under the GST. There is a myth which we all have. Language तो दोनों use करूँ आशा जी, और I can use हाँ. only Yes, English. yes, yes. You can use it. Participant which are not comfortable in English, please let me know. कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप chat box में लिख दीजिए, मैं फिर उसी के according language use करूँगा. All are comfortable in English? Yes, all are comfortable in English, Hindi, Fine. English, Hindi mix. Yeah, Or yeah, I will if do that. anyone have any problem, they can write in chat box also, as said by Ankit ji. So no issue. So now we are starting moving forward. Import and export under the GST. There is a myth that people think कि import तो मेरे यहाँ है ही नहीं. एक्सपोर्ट तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट मेरे यहाँ नहीं है, बिकॉज देयर इज ट्रांजेक्शन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड नोन बाय एवरीवन कि एक्सपोर्ट मेरे यहाँ नहीं है. बहुत लोग सोचते हैं इम्पोर्ट तो है ही नहीं मेरे यहाँ, तो क्या जानना है इम्पोर्ट को. मैंने जैसे कि डिस्कस करा, जो टॉपिक्स की चेन डिसाइड करी GWCAA ने, वो बहुत अच्छी चेन डिसाइड करी, और टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ऑलरेडी कवर हो चुका. और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर आई थिंक आशा जी सेक्शन 13 हैज ऑल्सो बीन कवर्ड बाय रोहित जी. सेक्शन 13 हमारा वेयर द कंप्लीट रिसीट, नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ओके, ऑफ टाइम. वो आज करेंगे, वो आज करेंगे, आज करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पे एप्लीकेबल है, एक्सपोर्ट सिर्फ स्पेसिफिक है. बट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपने पीछे देखा होगा कि बहुत सारे नोटिस क्लाइंटों को मिले जिसमें कहा गया कि आपने 17, 18, 18, 19 में फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कराया था और आपने जीएसटी पे नहीं करा अंडर द RCM. I don't have the exact figures in my hand right now, which I tell you, but you can see there are massive GST collection has been done by the department on this specific issue. और सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, जब हमने क्लाइंटों को बोला कि ये सर्विसेज आपने ली होगी, तो क्लाइंट की बुक्स में ही नहीं है. आप समझ रहे हैं, मतलब मेन इशू क्या है कि जब हम कहते हैं ऑडिट हो गया, सारे खर्चे बुक हो गए, उसके बावजूद भी फेसबुक की ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द फॉरेन एंटिटीज इज नॉट देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम डिपार्टमेंट के पास गए, हमने कहा जी ये कहाँ से आ रहा है, हमारा क्लाइंट तो कह रहा है ही नहीं. कहते सर मेरे पास डाटा है, मैं दे देता हूँ. और वो कहता है सर एक बार बताओ, मेरे यहाँ 4 लाख GST रजिस्ट्रेशन है और उसके अंदर मैंने सिर्फ 10 को या 20 को नोटिस भेजा है, तो डाटा 20 का होगा जब भी भेजा है. तब पता चला कि जी GST नंबर दे दिया था, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई पर्सनल से, और वो अकाउंट फॉर हुई नहीं बुक्स के अंदर. और फिर जब नोटिस आया तब हमें पता चला अरे ये भी था. तो फ्रॉम स्टार्टिंग विद दिस background, what I am saying that import of goods is well known to everyone. That import of goods तो क्या है सर, फिजिकल गुड्स आएगा, कस्टम से क्लियर होके आएगा, सबको दिखेगा, बिल ऑफ एंट्री आएगी, तो वो सब अकाउंट फॉर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी एज सच. बट जब हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की,
तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशलाइज तरीके से देखने वाला टॉपिक है कि क्या आप कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर एक बंदा इंडिया में बैठा है और एक बंदा आउटसाइड इंडिया है, द पर्सन इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द पर्सन इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो ट्रांजेक्शन को हमें एक फ्रेमवर्क के अंदर डालना है, जिसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट है फिर, सॉरी, अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो ये इंपोर्ट है या नहीं है, और अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या ये एक्सपोर्ट है या नहीं है। दिस विल बी डिसाइडेड ओनली एंड ओनली आफ्टर वी गो थ्रू द सम checklist and some definitions, some points, then only we can decide it. अच्छा, कई बार क्या माइंड में आता है, मैंने अमेरिका से कोई सर्विसेज ली तो सर इंपोर्ट है वो तो, ऐसा माइंड में है ना, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करा और बंदा अमेरिका में बैठा है जिससे सर्विसेज ली, तो हमारे माइंड में आता है यार ये तो इंपोर्ट है ही ना, इसमें डाउट क्या है, क्या अंकित जी क्या नया समझाने वाले हैं हमें, ठीक है उठा के जीएसटी पे कर देंगे। जीएसटी इंपोर्ट के अंदर आरसीएम पे होना है, और आरसीएम में आईटीसी आपको मिलता है सेक्शन 16 की कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, पहले पे करोगे फिर आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आप आरसीएम में कुछ भी पे कर दें और उसका आईटीसी ले लें, कोई इम्पैक्ट नहीं इंपोर्ट को मानते हुए। और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी उसके अंदर आती है, लिक्विडिटी कॉम्प्लिकेशंस भी उसके अंदर आती है। तो नाउ इन टुडे डेलिब्रेशन वी विल स्टडी कि दैट व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू जज whether it is import or not, whether we have to pay the RCM, yes or no। अभी तक जो मैंने बताया, क्या सबको क्लियर हुआ कि हमारा इंपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें जो स्टेप्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा थंब इंप्रेशन से सब हाँ या ना करते रहें। अगर सबको अभी तक क्लियर हो रहा है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो लेट मी नो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। वेटिंग फॉर अ सेकेंड प्लीज। I request audience to put their thumb mark yes or no, please. Now moving forward. Yes, thank you, thank you. Now definition of import. Import की definition क्या कहती है? Goods की अलग है, services की अलग है। थोड़ा थोड़ा लॉ समझेंगे और प्रैक्टिकली फिर बात करेंगे तो हमें टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 210 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन चीज दोनों एक्ट यूज होंगे। मेजर एक्ट जो यूज होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टॉपिक में वो कौन सा होगा? आईजीएसटी। बिकॉज इंटर स्टेट जो मूव करता है वो आईजीएसटी एक्ट से करता है, क्योंकि सीजीएसटी के अंदर सारे सेक्शन है, आईजीएसटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक है, तो सीजीएसटी तो मेन है ही है। सीजीएसटी इज लाइक अ माँ, वी हैव टू फॉलो दैट, बट आईजीएसटी वी हैव टू एड ऑन फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट टॉपिक्स। So now section 210 of the IGST Act say the import of goods with a grammatical variation and cognitive impression means bringing goods into India from a place outside India। ये बड़ा सिंपल कहता है कि जो आप माल बाहर से इंडिया के अंदर लाए हैं वो इंपोर्ट है। सपोज कोई बंदा माल बाहर गया था इंडिया से, उस गुड्स को ले आया और वो बिना कस्टम में डिक्लेयर करके अपने बैग में डाल के ले आया, वो कहते जी कस्टम फ्रंटियर तो ऑफिशियली मैंने क्लोज, बेसिकली मैं निकला ही नहीं वहां से, तो इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सिंपल कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में लॉ कहता है कि कोई भी गुड्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया इज इंपोर्ट। बड़ा सिंपल। और सेक्शन 7(2) क्या कहता है कि सेक्शन 7(2) ये डिसाइड करता है कि वो इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट है तो सेक्शन 7(2) कहता है कि कोई भी माल जो बाहर से इंडिया के अंदर आया वो इंट्रास्टेट है, उसके ऊपर आईजीएसटी पे होगा। दैट इज द थिंग। अच्छा, आईजीएसटी पे कब होता है? आईजीएसटी जनरली क्या मेजरली दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय द कस्टम। वो कस्टम क्लियर करेगा, कस्टम ड्यूटी लेगा, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट कर देगा, आईजीएसटी चार्ज करेगा, और अकॉर्डिंगली आपको बिल ऑफ एंट्री देकर माल को छोड़ दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप आईटीसी सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग उसमें अवेल कर लेंगे।
दैट इज विद रिगार्ड टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती हैं जो जनरली हम दिल्ली में बैठे हैं या एनसीआर में बैठे हैं तो हमारे पास सी कोस्ट एरिया नहीं है, तो उस तरीके की क्लाइंटेल कम है। वरना इंडिया की डेफिनेशन है जो कहती है, सेक्शन 256 के अंदर दिया है, डेफिनेशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, मैंने ये समराइज एक्सट्रैक्ट ही डाली है, exclusively economic zone which means bringing goods in 200 nautical miles from its coastline will be an import even if the goods has not been reached at custom frontier। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। आपने देखा होगा क्रूज के ऊपर पार्टीज होती हैं या क्रूज के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सिंपल कह रहा है कि अगर आप इंडिया की जो बाउंड्री है, जो डेफिनेशन है, टेरिटोरियल बाउंड्री है, आप उसके अंदर आ गए, गुड्स को ले आए, चाहे आपने कस्टम फ्रंटियर चेकआउट किया नहीं किया, इन दैट केस ऑल्सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इंपोर्ट। यहां तक सबको क्लियर है? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स बड़ा सिंपल सा है। हमने कोई माल बाहर से खरीदा, कस्टम के थ्रू इंडिया के अंदर आएगा, उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी का हमें आईटीसी मिलेगा, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हम आईटीसी की वैलिडिटी देखते हुए उसका आईटीसी लेंगे, बिल ऑफ एंट्री हमारे पास होगी और आज की तारीख में उसे 2B के अंदर रिफ्लेक्ट भी होना है। तो दिस इज विद रिगार्ड टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Now moving towards import of services, which is very main topic which we need to understand thoroughly. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बड़ी सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर ऑफ आईजीएसटी एक्ट, विच से द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मींस वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर कहाँ बैठा है? इंडिया के बाहर बैठा है, चाहे वो नेपाल में बैठा है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठा है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, दैट शुड बी द सप्लायर ऑफ सर्विसेज शुड बी आउटसाइड इंडिया। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में है और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है या इंडिया में है तो वो इंपोर्ट नहीं होगी। आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे, बट अगर सप्लायर इंडिया के अंदर है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगी, ये हमें क्लियर है। सेकेंड, द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया। जिसको सर्विसेज मिल रही है वो कहाँ होगा? उसकी लोकेशन क्या होगी? उसकी लोकेशन होगी इंडिया के अंदर। ही शुड बी इन इंडिया, ही शुड नॉट बी आउटसाइड इंडिया। अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। सबसे मेन जब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आप देखेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया इतना वाइटल रोल प्ले करेगा, जिसके बाद बहुत सारी सर्विसेज आपकी इंपोर्ट के अंदर ही नहीं आएंगी। तो हमने जब टॉपिक की शुरुआत करी वो दो दो चीजों से शुरुआत करी थी। पहले हमने कहा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं, छूट जाती हैं। दूसरा हमने कहा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम पे होना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में जो है वो जीएसटी पे नहीं करेगा, हमें उस पर आरसीएम पे करना है। तो वो इंपोर्ट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। उसके 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए कि सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया के अंदर होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अभी हम बाकी लो नहीं पढ़ते, बड़ी सिंपल सी 2-3 एग्जांपल लेते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई मैं बताऊंगा आप लोग। आंसर चैट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे। लाइव सेशन है एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। मेरा एक आर्किटेक्ट है, मैं बिल्डिंग इंडिया के अंदर बना रहा हूं। आई एम द रिसिपिएंट सिटिंग इन इंडिया, माई आर्किटेक्ट इज फ्रॉम दुबई and I am getting the building for the architecture of the building which is located in India। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मैं अभी बता देता हूं आपको, इंडिया में कंसिडर होगा एज पर सेक्शन 13। तो क्या ये मेरी सर्विसेज
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आएगी या नहीं, यस और नो? Waiting for the answer in the chat box for 5 seconds. Yes, yes, yes. Everybody is clear. Yes, definitely yes. बिकॉज सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, हम इंडिया में बैठे हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने ही बता दिया आपको इंडिया के अंदर है। तो सबसे बड़ी जंग क्या है हमारे लिए? सबसे बड़ी जंग है हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तो यहां मैंने बताया है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई हमें सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो हमने बड़ी सिंपल सी चीज समझी कि कोई भी चीज इंपोर्ट है या नहीं है, वो हमारी 3 चीजों से डिसाइड होगी: सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसीवर इंडिया के अंदर, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल। मेरी बिल्डिंग जिसके लिए मैं आर्किटेक्चर बनवा रहा था दुबई वाले से, मैं इंडिया में ही हूं, वो बिल्डिंग मेरी बननी है लंदन के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में इंडिया नहीं लंदन कहलाएगा, बिकॉज बिल्डिंग इज इन लंदन। वेदर इट वुड बी कवर्ड अंडर द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्लाइंट ने खर्चा बुक कर रखा है। नो नो नो, यस इट इज वेरी क्लियर। अब तो 8 साल हो गए जीएसटी को, तो कोई नई चीज मैं नहीं समझा रहा हूँ। यस। प्रकाश जी, यस क्यों बोला आपने? वाई यस? प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया सर। तो हमें बड़ा क्लियर लेना है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इंडिया के अंदर है, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया, तो उस केस में भी सर्विसेज इंपोर्ट नहीं कहलाएंगी, हमें आरसीएम नहीं देना। प्रकाश जी, आप एक बार क्वेरी सेशन में डिस्कस करेंगे हम, बट इसका यस नहीं है। लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर एट द क्वेश्चन आंसर राउंड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। हमने ये बड़ी सिंपल सी चीज समझी, तीनों कंडीशन अगर पूरी हैं उसी केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, वरना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है। एक और काम करते हैं। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे हम क्वेश्चंस लेंगे, तब उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप लोग ही डिसाइड करेंगे, और उस वो डिसाइड करके ही डिसाइड होगा कि जीएसटी इंपोर्ट में पे होएगा या नहीं होएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 7(1)(b हमने तीनों चीजें समझी। सेक्शन 2(11) कहता है कि आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 3 कंडीशन होंगी तभी पूरी मानी जाएगी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तभी आपको जीएसटी आरसी में पे करना है, वरना नहीं पे करना। सेक्शन 7(1)(b क्या कहता है? सेक्शन 7(1)(b कहता है, बड़ी सिंपल सी चीज कहता है, कि सीजी इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज चाहे बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर वो इंपोर्ट है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा ही आएगा। आरसीएम हमें पे करना है नहीं करना, अगर हम फॉर बिजनेस पर्पस है तो ही आरसीएम, हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ही हम आरसीएम पे करेंगे, और पर्सनल है तो हमें आरसीएम पे नहीं करना। और अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी पर्सनल सर्विसेज में सरकार लॉ जो बना दिया है, सरकार ने लॉ बना दिया है कि उसके ऊपर जीएसटी वो पे करेगा जो आउटसाइड इंडिया में है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। और जनरलाइज पर्सनल पर्सनल सर्विसेज, लाइक एग्जांपल मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पर्सनल घर बना रहा हूँ, जो एग्जांपल मैंने लिया उसके इसके अंदर मुझे जीएसटी नहीं पे करना, मैं आरसीएम का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा, ओनली फॉर माई पर्सनल पर्पस। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज ये है कि डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो क्या कहता है? कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सपोज मेरी ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, या मेरा कोई रिलेटेड कंसर्न है आउटसाइड इंडिया,
और मैं उससे कोई सर्विसेज ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि नहीं जी मैं तो कोई पेमेंट करता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया, लंदन के अंदर मेरे कंसल्टेंट बैठे हैं, मैं यहाँ पे कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरी ब्रांच है लंदन के अंदर, और मैं उसको कोई पेमेंट नहीं कर रहा बट सर्विसेज मैं ले रहा हूँ। तो इस केस के अंदर वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, चाहे उसमें कंसिडरेशन है या नहीं है। और उस केस में आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी पे करना। ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जिसकी कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया है। नाउ 1774 मैंने क्रक्स ऑफ सेक्शंस दिए हैं। आप कभी भी जब भी इंपोर्ट करेंगे तो ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, आप इसको यूज करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 74 कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड। सिंपल सी चीज है जी, वो कहता है कि आईजीएसटी पे होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे, सीजीएसटी आईजीएसटी पे नहीं होगा। फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईजीएसटी शैल बी पेड एज अ रिवर्स चार्ज, जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ओआईडीआर सर्विसेज के अंदर अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन को कोई सर्विसेज दी जा रही है तो उस केस के अंदर जो जीएसटी है वो जो प्रोवाइडर है वो पे करेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आरसीएम है। सपोज मेरी 20 लाख से कम की टर्नओवर है, आई एम इन अ बिजनेस, और मैंने क्या करा, मैंने लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन ले ली। उस केस के अंदर अगर, तो लिंक्डइन जनरली दे हैव टू पे द जीएसटी, बट बिकॉज आई एम बुकिंग दैट एक्सपेंडिचर इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in that case I require to have myself registered under the GST, and is I myself is required to take the GST registration and give that GST registration to that LinkedIn, and I have to pay the GST on the RCM. तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेक्शन कौन सा है? 24 सब क्लॉज 3। तो यहां तक मेरे अकॉर्डिंग सबको क्लियर है। आरसीएम एप्लीकेबल है तो उसके लिए सेक्शन 93 कहता है कि एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट है तो उसको आरसीएम नहीं देना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने 3 कंडीशन पढ़ी, ये एक्सपोर्ट में भी काम आएगी, कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया के अंदर होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया के अंदर होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा इंडिया के अंदर होना चाहिए। ये हमने पढ़ा। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कैसे डिसाइड होगा कि मैं इंडिया में हूं, मेरी रिसिप्ट इंडिया में है, तो मेरी लोकेशन क्या है, अंकित गर्ग की लोकेशन क्या है, ये डिसाइड कैसे होगा? तो उसकी कंडीशंस दी गई है लॉ में। उसको डिसाइड करने के लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज मींस when a supply is received at a place of business from which the registration has been obtained। अगर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने जिस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो मेरा प्लेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है। Where the supply is received at a place other than a place of business for which the registration has been obtained, किसी और प्लेस पे लिए जिसके लिए जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आता है और वो रजिस्ट्रेशन के अलावा वाला प्लेस है। तो लोकेशन ऑफ दैट सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट शुड बी डिसाइडेड टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। जब रोहित जी ने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाया होगा तो ये बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाया होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक में भी यूज होगा। Where a supply is received at a more than one establishment,
whether the place of business or fixed establishment, the location of establishment more directly connected. अगर सपोज मैंने सर्विसेज ली एक रजिस्टर्ड प्लेस के लिए और एक प्लेस जो रजिस्टर्ड नहीं है मगर मेरा फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है, तो लॉ ये कहता है कि आपका जो भी डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस सर्विसेज को उस पे डिलीवर हुआ है वो माना जाएगा. In absence of such places, the location of usual place of residence of the recipient, जो एड्रेस आ रहा है रिसिपिएंट का, उस रिसिपिएंट के एड्रेस को हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज मान लेंगे. तो यहां तक सबको क्लियर है. सेम ही कंडीशन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज की है. पहली कि आपने जिस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो अब आउटसाइड इंडिया है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो उसका फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट पे भी नहीं जाएंगे, ये तो जीएसटी लॉ का है. तो उसका जो एड्रेस है वो आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड करा रहा है, तो वो एड्रेस को हम प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस मानेंगे. अगर सपोज कोई बंदा इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया से सर्विसेज ना प्रोवाइड कराकर आउटसाइड इंडिया से करा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो हम ये देखेंगे तो सप्लायर कौन है हमारा. सप्लायर आउटसाइड इंडिया वाला है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वुड बी कंसिडर एज ए लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज. तो यहां तक मेरे अकॉर्डिंग सबको 2 पॉइंट क्लियर हो गए. हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए इसके अंदर. नाउ हम चलेंगे अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर. ये फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है, आपको रोहित सर ने कवर करा दी होगी आशा जी. आई थिंक ये कवर हो चुकी होंगी प्लेस ऑफ सप्लाई में. प्लेस एस्टेब्लिशमेंट का डिस्कस हुआ था. फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट डिस्कस हो गया होगा ना. तो फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट जनरल देख लेते हैं. डेफिनेशंस दे रखी है, किसी को नहीं समझ में आए. फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट कई बार काम आता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी. आपका कोई प्लेस है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, जैसे कि रेंटिंग वाले में बात होती थी कि जी हम दिल्ली के अंदर बैठे, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड दिल्ली है, गुड़गांव में है, तो क्या मुझे गुड़गांव में भी रजिस्ट्रेशन लेना है? तो जब वो डिसाइड करते थे तो वो फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन से डिसाइड करते थे कि अगर परमानेंट डिग्री ऑफ प्रेजेंस, सुटेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू सप्लाई द सर्विसेज, तो उस केस के अंदर आपका फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा. तो हम कहते थे कि जी आप दिल्ली में लोकेटेड हो तो दिल्ली ही आपका प्लेस है, वहीं रजिस्ट्रेशन लो और आप आईजीएसटी चार्ज करो. और ये चीज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हम अलग पढ़ेंगे. लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के लिए भी आपको इसी के थ्रू डिसाइड करना है. प्लेस ऑफ बिजनेस, द बिजनेस जहां कैरी ऑन हो रहा है, जहां मैं बैठा हूं, जहां से मैं जनरल बिजनेस कर रहा हूं, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस है. वेयर हाउस, गोडाउन और ये सारे प्लेसेस प्लेस ऑफ बिजनेस है. मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टॉपिक लंबा है और टाइम कम है थोड़ा सा. एज पर द प्रोवाइजर टू सेक्शन 5, वो ये कहता है कि कस्टम ड्यूटी लेवी होगी और कस्टम ड्यूटी के बाद फिर आपका जीएसटी लेवी होगा जो कस्टम चार्ज करेगा, और उसकी पेमेंट आप कस्टम ड्यूटी के साथ करेंगे और उसका फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा थ्रू बिल ऑफ एंट्री. तो हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने क्लियर कर लिया कि जी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए. और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया के अंदर होना चाहिए. अब एक्सपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो 3 कंडीशन तो कॉमन है. 3 कंडीशन तो कॉमन है, बस उसमें वो चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडर और रिसिपिएंट. रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा और प्रोवाइडर इंडिया के अंदर हो जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. और 2 कंडीशन उसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं, यानी सरकार आपसे एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लेती. सरकार ने कहा इंपोर्ट पे तो जीएसटी दे दो,
चाहे आपने फॉरेन करेंसी में पे करा, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से पे करा, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, उस पर जीएसटी पे कर दो। मगर एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने दो कंडीशन और डाली है। उससे पहले एक छोटा सा गुड्स का डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, गुड्स में भी सेम है जैसे इंपोर्ट में हमने कहा। गुड्स को इंडिया के अंदर लेके आए तो वो इंपोर्ट माना जाएगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी मैं गुड्स को इंडिया से बाहर ले गया जो कि आउटसाइड इंडिया में है, तो वो एक्सपोर्ट कहलाएंगे। जीरो रेटेड की कुछ एक्सेप्शन है, एसईजेड वगैरह की, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेरीज भी आई हुई, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्या कहता है? 5 कंडीशन देता है आपको एक्सपोर्ट की। 3 कंडीशन वही इंपोर्ट वाली, बस उल्टी। यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या होगी? इंडिया के अंदर होगी। यानी मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं आउटसाइड इंडिया में सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं तो इंडिया के अंदर बैठा हूं, आउटसाइड इंडिया में सर्विसेज दे रहा हूं। यानी सब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मेरा कहाँ बैठा है? आउटसाइड इंडिया बैठा है। तो वो क्या है? एक्सपोर्ट नजर भी आ रही है और कहला भी रही है कि जी एक्सपोर्ट नजर आ रही है जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। मगर इसके अंदर भी प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। और प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 13 है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा। चौथी कंडीशन जो एड ऑन डल गई, सरकार ने कहा, क्योंकि एक्सपोर्ट में सरकार रिफंड भी देती है आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, आर ओ डी टी, आर ओ रोड टैप देती है। तो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट द सरकार आपको जो देती है। द पेमेंट ऑफ फॉर सच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज एज एंड वेयर परमिटेड बाय द आरबीआई। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने अपना, मेरे पास क्लाइंट आया जो अमेरिका में रहता है, उसने कहा जी मेरी इंडिया की रिटर्न, इंडिया में बैठ के मेरी रिटर्न भर दो। मेरे पास उसका एड्रेस अमेरिका का है, मैंने उसे सर्विसेज दी, उसकी रिटर्न भर दी। मैंने कहा जी ये तो एक्सपोर्ट है, इस पे जीएसटी क्यों देना है? उसने आईएनआर में मुझे पैसे भेज दिए। उसका इंडिया जो अकाउंट था, उसने इंडिया अकाउंट से मुझे पैसे दे गया वो। या और छोड़ दो, मैंने एक्सपोर्ट क्लेम कर ली, मैंने कैश में दिखाया कि जी वो इंडिया घूमने आया था और वो मुझे कैश में दे गया। और मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बिल रेस करा जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं करा। तो क्या मेरी फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो रही है? नो, वो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी। बंदा भी आउटसाइड इंडिया बैठा है, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूं, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। मैं खुद बता रहा हूं, वो सेक्शन 13 से डिसाइड करेंगे अभी। बट क्योंकि पैसा फॉरेन करेंसी में नहीं आया, तो वो मेरी एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी। और डिपार्टमेंट आपसे फॉरेन करेंसी में पैसा आया नहीं आया वो कैसे पता चलेगा? आपके बैंक में तो आईएनआर में ही आया है। आपने बिल ठीक है डॉलर में रेस करा होगा, बट आपके पास तो आईएनआर में आया है। तो बैंक, एक प्रोसीजर है एफआईआरसी लेने का, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस लेने का। वो आपको सर्टिफिकेट लेना है बैंक से, जो आपको ये बताएगा कि जी ये जो पैसा है ये आपका फॉरेन इस कंट्री से आपको आया है, और अकॉर्डिंगली उसको आप फिर एक्सपोर्ट के अंदर आप फॉल कर पाएंगे। अगर एफआईआरसी नहीं है तो डिपार्टमेंट आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं मानेगा। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आउटसाइड इंडिया, एंड दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट रिसीविंग द एफआईआरसी सर, और मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूं नो, प्लीज चेक, यू नीड अ एफआईआरसी, इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट योर मनी हैज बीन रिसीव्ड इन अ फॉरेन करेंसी। Moving forward, supplier and recipient are not merely establishment of distinct person. ये क्या है जी? पांचवी कंडीशन। चार तो समझ में आ गई, ये पांचवी कंडीशन क्या है? ये कहती है कि अगर मेरी कोई ब्रांच दुबई में है,
या लंदन में है और मेरा हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है, मैं कहता हूं मैंने यहां से कंसल्टेंसी दी अपनी दुबई ब्रांच को और मैं उसका इनवॉइस रेज कर रहा हूं, तो सरकार कहती है कि आप जो दुबई ब्रांच को इनवॉइस रेज कर रहे हो वो हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी वो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी, बिकॉज मियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स अगर आप कोई सर्विसेज ब्रांच को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो मियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में आता है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो आप अगर कोई ब्रांच को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसको सरकार एक्सपोर्ट नहीं मानती, उसको वो आपका एक्सपोर्ट की डेफिनेशन से बाहर रखती है। क्लियर है? कस्टम फ्रंटियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पे क्या लगेगा? इस पे कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। 8 साल जीएसटी को हो चुके हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कभी नहीं जाएगा, आईजीएसटी ही लगेगा हमेशा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी लगेगा हमेशा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। सप्लाई ऑफ गुड्स ये हो ही गया हमारा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16, एक्सपोर्ट का फायदा क्या है? बड़ी एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, एक्सपोर्ट का फायदा क्या है? एक्सपोर्ट का फायदा है, सरकार कहती है कि एक्सपोर्ट के केस में आपको जीएसटी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, आप सामने वाले की कॉस्ट मत बढ़ाओ, आप वर्ल्ड में कॉम्पिटिट करो। अगर आपकी 100 रुपए की कॉस्ट है, आपने अपना मार्जिन 30 रुपए ऐड करा या 50 रुपए ऐड करा, तो 150 रुपए सामने वाले से चार्ज करो, आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी हम आपसे चार्ज नहीं है। प्लस जो उस सर्विसेज को देने में या उस गुड्स को सप्लाई करने में आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज का इस्तेमाल करा है, इवन कैपिटल गुड्स का भी इस्तेमाल करा है, तो उसका हम आपको रिफंड दे देंगे। क्लियर है? एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसका मुझे आंसर यस या नो में दीजिएगा। मैंने अपने क्लाइंट को जो अमेरिका में बैठा है एक बिल रेज करा जिसपे मैंने 100 रुपए बेसिक लगाया, 18 रुपए जीएसटी लगाया, 118 रुपए मैंने चार्ज करे, और मैंने उस क्लाइंट से कहा जी $18 तो जीएसटी देना है आपको, $100 आपको बेसिक देना है, तो $118 आपको मुझे देने हैं, और मैंने बिल रेज करके उसको आउटसाइड इंडिया भेज दिया। तो क्या वो जीरो रेटेड में कवर होकर मैं 18 रुपए को अपनी इनकम बना सकता हूँ, या वो 18 रुपए मुझे सरकार को देने होंगे? मैं चैट बॉक्स में आंसर चाहता हूँ, क्या मुझे वो 18 रुपए सरकार को देने होंगे या फिर मैं उसे इनकम मान सकता हूँ? यस, वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। एक अनजस्ट एनरिचमेंट हमने सुना होगा। एक्सपोर्ट के केस में आप मार्जिन बढ़ा सकते हो अपना, बट आप 150 रुपए सरकार से कह सकते हो कि 150 का 150 जी मेरी वैल्यू है, कोई जीएसटी इंक्लूड नहीं है उसके अंदर। मगर अगर किसी डॉक्यूमेंट पे आपने जीएसटी के नाम से आउटसाइड इंडिया वाले से पैसा चार्ज कर लिया और वो डिपार्टमेंट को मिल गया, तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, उसको 18 रुपए को फिर जीएसटी को आपको देना पड़ेगा। तो ये हमें क्लियर है? आगे चलते हैं। सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई की बात करता है जी। एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट करने के। सरकार कहती है या तो आप पे कर दो, पहली चीज, किसी भी केस में आपको बाहर वाले से चार्ज नहीं करना, यानी आउटसाइड इंडिया में जो बैठा है उससे आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपने उससे जीएसटी चार्ज कर लिया तो आपको सरकार को देना है, वो जीरो रेटेड में नहीं आएगा, वो जीएसटी आपको पे करना है। अगर आपने वो जीएसटी चार्ज नहीं करा, जनरली करते भी नहीं है, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई कहेगा। सरकार कहती है कि आपको हम दो ऑप्शंस देते हैं, या तो एलयूटी फाइल कर दो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बड़ा सिंपल सा, इतना सिंपल प्रोसेस बनाया जीएसटी के अंदर, मजेदार, 5 मिनट के अंदर फाइल हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, उस पर जीएसटी मत चार्ज करो, रिटर्न में भी जीएसटी मत पे करो, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा ऑप्शन सरकार ने कहा कि आपका तो इनपुट है जी, आप कहते हो सर मेरा तो इनपुट है, मुझे तो जीएसटी देना ही नहीं था, मेरे पास तो इनपुट इकट्ठा था, मैं जीएसटी चार्ज पे करता और उससे नॉक ऑफ कर लेता। तो सरकार कहती है परेशान ना हो, हम आपको ऑप्शन देते हैं। गुड्स के केस में, इवन सर्विसेज के केस में भी है, बट गुड्स के केसेस में आज की तारीख में ऑटोमेटिक है। अगर आपका आईटीसी पड़ा हुआ है कैश लेजर, क्रेडिट लेजर के अंदर, तो सरकार कहती है आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करो विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यानी कस्टम में डिक्लेयर करो कि आईजीएसटी जी आप हमें वापस दे दो, बाहर वाले से तो चार्ज करना ही नहीं, ये तो क्लियर है। और रिटर्न के अंदर आप जीएसटी रिटर्न के अंदर उसको आउटवर्ड टैक्स के अंदर डाल के जीएसटी रिटर्न फाइल कर दो, इनपुट से एडजस्ट कर दो, तो सरकार आपको उस आउटवर्ड आईजीएसटी का ऑटोमेटिकली रिफंड आपके बैंक अकाउंट में दे देती है। यानी आपकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। ये क्लियर है? दो ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने के, एलयूटी या विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अच्छा, कुछ केसेस अभी आ रहे हैं, किसी के पास नोटिस आया है 19-20 के, 18-19 के, कि जी एक्सपोर्ट करा है आपने बट अंडर एलयूटी, और एलयूटी तो है ही नहीं आपकी। डू एनीबडी हैव द क्लाइंट जिसके केसेस आए हुए हैं? नॉट येट। आशा जी, यूपी के अंदर हाईलाइट टॉपिक है आज की तारीख में। यूपी वाले वैसे भी काफी एडवांस है, ये नई नई चीजों पे नोटिस, वो ट्रेंड सेट करते हैं मुझे लगता है क्रॉस इंडिया के लिए। हाँ, तो उन्होंने ट्रेंड सेट करा है। 18-19, 19-20 के सबको नोटिस इशू हो चुके हैं 74 सेक्शन के अंदर, कि आपने एक्सपोर्ट करी अंडर एलयूटी, और एलयूटी तो आपने जनरेट ही नहीं करी। यहाँ अब आप गुड़गांव में सोच तो मोस्ट सकते ऑफ द हैं नोटिस जो एक, 74 के आ रहे हैं, दे आर ऑन द मिसमैच ग्राउंड। 9, 9 वो 9 और 3B के मिसमैच। नहीं, अभी ये तो नहीं 74 आया। का नोटिस अगर मिसमैच ग्राउंड पे आ रहा है और कोई बड़ा नोटिस है तो उसको हमारे पास भेज देना, 74 में वो होना ही नहीं चाहिए। तो डाल दी उसकी रिप्लाई। फिर उसकी हम लड़ाई ऊपर लड़ेंगे, नीचे तो नहीं छोड़ेगा वो तो डिपार्टमेंट। बिल्कुल बट उसकी मैं तो यहां लड़ाई से करी जाएगी। इस मंच के द्वारा सबसे ये बात कहनी बहुत जरूरी समझता हूं, हम ऑडिट भी कर रहे हैं, हम जीएसटी प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई क्लाइंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है और एलयूटी अगर उसकी रह गई है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दो, हाई कोर्ट ये कहता है कि ये प्रोसीजर लैप्स है, कोई इससे आपकी एक्सपोर्ट हुई है ये डिनाई नहीं हो सकता। बट आपको दिक्कत इसके अंदर आएगी, आपको दिक्कत ये आएगी कि आप जीएसटी का रिफंड नहीं ले पाएंगे, आपको नोटिस आ सकता है, सरकार पूरा का पूरा आपसे जीएसटी मांग सकती है, जो कि आसान नहीं है। बट टू अवॉइड दिस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, व्हेन यू रिसीव द थिंग्स जीरो रेटेड इन योर रिटर्न, आपके क्लाइंट की रिटर्न में आ रहा है तो एक बार जरूर एश्योर करें कि एलयूटी जनरेटेड है या नहीं है। ऑडिट कर रहे हैं तो भी एश्योर करें कि एलयूटी जनरेटेड है या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, zero rated supply means any of the following supply of goods or services, namely export of goods or services or both। आपको पता होगा एसईजेड, एसईजेड सरकार कहती है एसईजेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बेनिफिशियरी एरिया। सरकार ने कुछ एरिया को डेवलप करा, वहां को स्पेशल इकोनॉमी जोन डिक्लेयर करा। इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने के बाद सरकार ने कहा अगर कोई गुड्स आप यहाँ सेल करोगे तो ये भी आपके जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर होंगे। बट सरकार ने अब लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दी और उसके अंदर ये डाला कि वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज होने चाहिए, जिसका स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे क्लाइंट के पास एक कस्टमर आया एसईजेड से, वो कहता है कि ये गुड्स मुझे एसईजेड में सप्लाई कर दो। मेरा क्लाइंट कहता है नहीं जी, मैं तो इस पे जीएसटी चार्ज करूंगा, मैं तो इसे एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करूंगा। तो हमारे पास फोन आया कि जी क्या करूं। हमने क्लाइंट को बोला कि भाई ऐसा है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है इसके ऊपर, because it is a zero rated supply, but you should take a certificate that these goods are used by the SEZ for the authorized operations। तो बहुत बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी मैं एलयूटी के नोटिस की बात कर रहा था आशा जी से, आने वाले टाइम में एसईजेड के नोटिस भी आने वाले हैं, जिसके अंदर डिपार्टमेंट कहेगा लाइए जी आप जरा हमें ऑथराइजेज ऑपरेशन के सर्टिफिकेट दिखाइए कि जो आपने गुड्स सप्लाई करे वो एसईजेड ने ऑथराइज ऑपरेशन में ही यूज करे हैं।
अगर नहीं करें तो जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है वो जीरो रेटेड नहीं मानी जाएगी, उस पर सरकार आपसे जीएसटी चार्ज करने की बात करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 मैंने बताया कि 31 जुलाई 2023 के बाद ऐड कर दिया गया कि ऑथराइज ऑपरेशन के लिए ही अगर जब आप एसईजेड में सप्लाई कर रहे हैं तभी आप उस केस के अंदर आपकी जीरो रेटेड कंसिडर होगी, वरना जीरो रेटेड कंसिडर नहीं। अब हमने यहाँ डिस्कस करा कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एक्सपोर्ट करने का फायदा ये है कि हमें हमारा आईटीसी वापस मिल जाता है, हमें उस आईटीसी का रिफंड दे देती है सरकार। गुड्स के केस में ऑटोमेटिक रिफंड आ जाता है। सर्विसेज के केस में हमारे पास दो ऑप्शन है, हम रिफंड दोनों ही केस में हमें फाइल करना है, बट उसका भी रिफंड आ जाता है। तो सरकार ने कहा हाँ यस। अच्छा, सर्विसेज के केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विसेज के केस में तो सरकार ने जो सिस्टम बना रखा है वो आपको रिफंड ही जब देते हैं जब आपका पैसा आ जाता है। अगर सर्विसेज के केस में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, अगर वो पैसा नहीं आया और आपने सर्विसेज दे रखी है तो सरकार आपको कोई रिफंड नहीं देने वाली जब तक पैसा ना आ जाए। आप जब रिफंड की एप्लीकेशन रूल 89 वगैरह पढ़ेंगे तो भी आपको दिखेगा कि जिस ईयर में पेमेंट आई है उस ईयर में ही आप उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, बिना पेमेंट आए आप उसका रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। बट गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। गुड्स के केस में अगर आप चीजों को बाहर ले गए, आउटसाइड इंडिया ले गए, तो जैसा आपने डेफिनेशन पढ़ा वो एक्सपोर्ट कहलाएगा और अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना। मगर सरकार ने ये कहा कि अगर आपने रिफंड लिया है और आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो फेमा पहले 9 महीने कहता था कि 9 महीने के अंदर आपको पेमेंट मंगानी है। अगर आपने पेमेंट नहीं मंगाई 9 महीने के अंदर फॉरेन करेंसी में, तो उस केस के अंदर जो आपने रिफंड लिया है उसको आपको 18% के ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर वापस देना है, जब ये टाइम लिमिट खत्म हो जाए। मगर इस टाइम लिमिट को सरकार ने बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है फेमा एक्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ सम हर्डल्स आर गोइंग ऑन, सम अनरेस्ट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो सरकार ने उसको 9 महीने को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। अगर 15 महीने के अंदर आप पेमेंट नहीं लाए और आपने उसका रिफंड ले लिया था तो उस केस के अंदर वो रिफंड 18% ब्याज के साथ आपको सरकार को वापस देना है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये कितनी खतरनाक प्रोविजन है। हमने एक्सपोर्ट करी, हमने विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा, सरकार ने ऑटोमेटिकली रिफंड दे दिया। मैं ऑडिट कर रहा हूँ 31 मार्च 2025 की मैंने बैलेंस शीट बनाई जिसके अंदर फॉरेन डेटर खड़ा हुआ है, जिसकी एक्सपोर्ट मैंने 1 अप्रैल 2024 में कर दी थी और रिफंड में ऑलरेडी लेके बैठा हूं। तो क्या उस केस के अंदर मेरा रिफंड वापस जाना चाहिए, यस और नो? और अगर मैंने बैलेंस शीट के अंदर मार्क नहीं करा तो क्या वो बैलेंस शीट ठीक है? आंसर इन द चैट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट टू आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, पहले ये चीज लॉ में नहीं लिखी हुई थी। पहले जब आप पढ़ेंगे जीरो रेटेड सप्लाई में कोई डेफिनेशन नहीं थी, आप देखेंगे तो जीरो रेटेड सप्लाई में बाद में ऐड हुआ। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है सभी ने, बिल्कुल रिफंड वापस देना पड़ेगा हमें और विद 18% इंटरेस्ट हमें वापस देना है। तो यहां से क्लियर हो गया। मैं अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले भी नहीं हुआ आपका। अच्छा, अगर मैंने कोई माल अमेरिका से लिया और चाइना में बेच दिया, या चाइना से लिया अमेरिका में बेच दिया, या आउटसाइड इंडिया कहीं से भी लिया कहीं भी बेच दिया, तो सरकार ने क्लियर कर दिया वो आपकी जीएसटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ना वो एक्सपोर्ट है ना वो इंपोर्ट है, वो नॉन जीएसटी सप्लाई है आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। शेड्यूल 3 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया। वेयर हाउस गुड्स को हमने बिफोर द क्लियरेंस, वेयर हाउस गुड्स क्या होते हैं? कस्टम के अंदर वेयर हाउस बने हुए हैं, मैंने इंपोर्ट करा और इंपोर्ट कस्टम वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, उससे पहले ही माल बेच दिया, तो उस केस में वो मेरी हाईसी सेल कहलाएगी, यानी उस पर मेरा कोई जीएसटी का लेना देना नहीं है। हाँ, जो इंपोर्ट करेगा या वो भारी दोबारा ले जाएगा वो उसकी हेडेक है। एक्सपोर्ट के मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। कंपोजिशन से सब चेंज हो चुका है, मगर उसका रिफंड भी पहले मिलता था, अब तो कंपनसेशन सेस ही हटा दिया गया है।
उसका रिफंड के कुछ पैरामीटर्स थे, तो ये मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप देख लीजिएगा। मैंने इसमें सिंपल सी बात लिखी है, अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप सेक्शन रूल 89 देखेंगे, कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलता। बट जब एक्सपोर्ट आप विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करेंगे तो कैपिटल गुड्स का भी रिफंड आपको मिल जाएगा। ये टैक्स प्लानिंग है, यू हैव टू लुक एट दिस स्लाइड, यू विल फाइंड सम गुड सॉल्यूशंस फॉर योर क्लाइंट्स। दूसरा, 100% एक्सपोर्टर है और एक्यूमुलेटेड आईटीसी है तो हम कहेंगे विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जाओ और आप एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी मत करो, क्योंकि एलयूटी का मतलब है आपको डिपार्टमेंट जाना है, और आपको डिपार्टमेंट अगर नहीं जाना है तो ऑटोमेटिकली रिफंड आप क्लेम कराओ अपना। अभी हम इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैं 15 मिनट डेफिनेटली रखने वाला हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, 6:30 से आगे भी मैं बढ़ जाऊंगा अगर आशा जी अलाउ करेंगी, बट मैं सारी क्वेरीज लेके जाऊंगा, सो डोंट वरी, आप क्वेरी मार्क करते रहिए बिल्कुल, प्लीज। हमें इट विल बी आवर प्रिविलेज। डोमेस्टिक वी आर सेल्स रेडी टू प्लस एक्सटेंड द एक्सपोर्ट्स, टाइम। या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स है आपकी, तो आप प्लानिंग करिए, आप देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े हुए हैं तो आप रिफंड ले सकते हैं ऑटोमेटिकली विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इन द केस ऑफ गुड्स के केस के अंदर। तो ये सब आपकी प्लानिंग है जो मैंने आपको स्लाइड के रूप में बताई है। मैंने वो बता चुका आपको, शिपिंग बिल शुड बी कंसिडर्ड एज एन डीम्ड एप्लीकेशन फॉर द रिफंड, export without the payment of taxes in case applicant needs to file the refund application to apply the refund। for services के केस में, दोनों ही केस में आपको रिफंड के लिए डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। अब मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक्सपोर्ट के केस में इंडिया में होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया होगा, करेंसी ऑफ पेमेंट फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी एज परमिटेड बाय द आरबीआई, रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, तो उस केस के अंदर एक्सपोर्ट कहलाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस और नो, नो बिकॉज इट इज ए जीरो रेटेड सप्लाई। इंपोर्ट क्या है, मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा इंडिया के अंदर है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करा या नहीं करा नॉट मटेरियल, रिलेशनशिप नॉट मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और उस केस में आपको जीएसटी पे करना है आरसीएम के अंदर। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हमने जैसे कि डिस्कस किया, 3 कंडीशन थी दोनों ही केस में, एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट में भी। इंपोर्ट में था कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर होना चाहिए, एक्सपोर्ट में था प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो ही एक्सपोर्ट कहलाएगी, अगर इंडिया के अंदर है तो आरसीएम पे। तो सबसे पहले हम कंडीशन डिस्कस करते हैं, रेजिडरी कंडीशन। इसके लिए सेक्शन 13 है आईजीएसटी एक्ट का, कभी भी आप फंसे उसे पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, हम सब प्रोफेशनल है, हर चीज का सॉल्यूशन है, पढ़ेंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। 13 सबसेक्शन 13 सेक्शन कहता है कि अगर इन फॉलोइंग 3 से 13 क्लॉज के अंदर आप कवर अप नहीं करते तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर इन 3 पैरामीटर्स, सॉरी 10 पैरामीटर्स जो नीचे हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर अगर आप नहीं हैं तो जनरलाइज रूल प्लेस ऑफ सप्लाई का ये है कि द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि मेरे पास मैंने कोई भी सर्विसेज दी जो कि फॉल नहीं करती स्पेसिफिक कंडीशन में, और मेरे पास उस बंदे का एड्रेस है जो कि आउटसाइड इंडिया बैठा है और फॉरेन करेंसी में पेमेंट दे रहा है, तो उस केस के अंदर वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। और मैंने अगर सर्विसेज ली हैं और वो आउटसाइड इंडिया बैठा है और इन 10 कंडीशंस जो अलग अलग स्पेसिफिक सर्विसेज है उसमें फॉल नहीं करता, तो उस केस के अंदर वो इंपोर्ट कहलाएगा। रेजिडरी क्लियर है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो रिसिपिएंट की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूं या लेता हूं, उसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं
है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमारी मायने रखेगी। अगर आउटसाइड इंडिया मेरा कस्टमर है तो एक्सपोर्ट कहलाएगी, और इंडिया में मेरा कस्टमर है तो वो इंपोर्ट कहलाएगी। सॉरी, अगर इंडिया में मैं रिसीव कर रहा हूँ और प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है तो वो मेरी इंपोर्ट कहलाएगी। अब हम चलते हैं पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। अगर मैं कोई इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं जिसके लिए गुड्स मेरे पास होना जरूरी है, या मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं जो गुड्स के ऊपर है, या मैं कोई सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करा रहा हूं जिसके अंदर जो व्यक्ति है उसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत आवश्यक है, मतलब वो फिजिकल प्रेजेंट होएगा तभी मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली, जहां वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो एग्जांपल लेता हूं यहां से। मेरे पास अमेरिका से फोन आया कि जी हमें कश्मीर से केसर खरीदना है। मेरा क्लाइंट है जो केसर का इंस्पेक्शन करता है कि हाँ उसकी क्वालिटी क्या है। मेरा जो कस्टमर है, मैं किसको सर्विसेज दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ सर्विसेज अमेरिका में। मेरा जो क्लाइंट है वो कहाँ से सर्विसेज दे रहा है? वो इंडिया से सर्विसेज दे रहा है। और केसर का वो इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस केस में क्या वो एक्सपोर्ट कहलाएगी? यस और नो? अब इसके अंदर हमने 5 कंडीशन में मान के चलिए कि वो फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा। अरविंदर सिंह जी नो, रमजीत सिंह जी नो, यस, बिकॉज आप 3 नंबर के अंदर फंसेंगे। जो इंस्पेक्शन है वो कहाँ हो रही है उस पर डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और वो इंडिया के अंदर हो रही है बिकॉज केसर मेरा इंडिया के अंदर है, तो उस केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंगली you your services would not be considered as an export of services। मगर आप देखेंगे तो प्राइमा फेसी कैसा लग रहा है? अगर एक जनरलाइज मैन से पूछो जिसको जीएसटी की नॉलेज नहीं है, तो कैसा लग रहा है जी? मेरा तो कस्टमर अमेरिका में है, फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है जी, तो मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं है जी? उसका आंसर क्लाइंट को कैसे देंगे आप? प्लेस ऑफ सप्लाई बताकर। क्लियर है यहां तक सभी को? थम्स अप कर दें अगर किसी कोई बोर नहीं हो रहा है और अच्छा लग रहा है और हम समझ पा रहे हैं चीजों को। मूविंग फॉरवर्ड, services supplied directly in relation to immovable property, services of the expert and estate agent, accommodation, hotels and inn। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। रमनजीत जी, वी विल टेक योर क्वेरी सर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको टाइम देंगे बोलने का और आपकी क्वेरी भी लेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चिट एंड चैट चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। अनदर 10 minutes वी विल क्लोज अवर डेलिब्रेशन एंड वी विल स्पेंड द टाइम फॉर द क्वेरीज। तो सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली वर्ड को मैंने बड़ा हाईलाइट करा है क्योंकि ऑफिसर बहुत सारी इनडायरेक्ट सर्विसेज पे भी कहते हैं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसका लोकेशन क्या होगी? उसकी लोकेशन होगी जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी मैंने आर्किटेक्ट्स का एग्जांपल आपसे लिया था जिसमें मैंने कहा था प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा दुबई का आर्किटेक्ट है, मैं अपनी कोठी इंडिया के अंदर बना रहा हूं, तो क्या वो इंपोर्ट के अंदर आएगी? यस, वो इंपोर्ट के अंदर आएगी बिकॉज लोकेशन वुड बी इन इंडिया, बिकॉज इमोबल प्रॉपर्टी मेरी इंडिया के अंदर है। मैंने एक अमेरिका के अंदर मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूं और वहां का मैंने एजेंट प्रोवाइड कराया, एजेंट अपॉइंट करा जिसने मुझे सर्विसेज दी। मैं ऑफिस सर्च कर रहा हूं अमेरिका के अंदर, मुझे आंसर दीजिएगा यस और नो। मेरा रिसिपिएंट कौन है? अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति। मैं कहाँ बैठा हूँ? इंडिया के अंदर बैठा हूँ, और मैं ऑफिस ढूंढ रहा हूं अमेरिका के अंदर। मैंने $10,000 उसको पे करे, यानी कि 9 लाख रुपए मैंने उसको पे करे। तो क्या मुझे आरसीएम पे करना है? यस और नो? क्या वो इंपोर्ट माना जाएगा या नहीं? आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं क्वेरी रिपीट करता हूं, नो, नो, यस।
कंप्लीटली यस, बिल्कुल, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा आउटसाइड इंडिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में बंदा बैठा है, जो मिथ आती है कि नहीं जी मैं तो फॉरेन करेंसी में उसको पैसे दे रहा हूँ, मेरा ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा आउटसाइड इंडिया चला गया, तो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं कहलाएगी। बहुत अच्छे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक और स्पोर्टिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फेयर्स एंड एंसिलरी सर्विसेज, द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। इवेंट के केस में जहां इवेंट हो रहा है उस प्लेस ऑफ सप्लाई हम मानेंगे, अकॉर्डिंगली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता हूं मैं 8 नंबर, इंटरमीडिएट सर्विस। इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाता है आज की तारीख में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं गुड्स की इंपोर्ट करता हूं, मेरा कमीशन एजेंट है जो आउटसाइड इंडिया बैठा है, मैं बाहर से माल मंगा रहा हूं, वो मेरा माल ऑर्गेनाइज करा रहा है और वो मुझसे कमीशन लेता है उसके ऊपर, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। मैं उसे फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहा हूं और आउटसाइड इंडिया वो बैठा हुआ है, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं, मेरा माल बाहर से आ रहा है चाइना से फॉर एग्जांपल। तो क्या उस केस के अंदर मुझे आरसीएम पे करना है एज ऑन द डेट, यस और नो? नो नो नो, यस डेफिनेटली हमें नहीं पे करना, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएट के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है जो कि बाहर बैठा हुआ है, तो उस केस के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर नहीं होगा। साइमल्टेनियसली ये अपोजिट हो जाएगा एक्सपोर्ट के केस में, बट इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, प्रपोज कर दिए गए हैं चेंजेस जीएसटी काउंसिल ने, तो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली डेफिनेशन, ये जो कंडीशन थी ये डिलीट हो गई। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस के अंदर रेजिडरी क्लॉज जो हमने पढ़ा था वही एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंगली द जीएसटी वुड बी द पीओएस वुड बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट के बेस पे डिसाइड होगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के केस में प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस, यानी जो शिप वगैरह पे चलता है, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑन रिट्राइवल सर्विसेज, जो हम फेसबुक की बात कर रहे थे, इसके केस में क्या है आपका लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं इंडिया में बैठा हूं, मैंने फेसबुक आयरलैंड से सर्विसेज ली या लिंक्डइन से मैंने सर्विसेज ली, सब्सक्रिप्शन ली और मैंने फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर दी। मेरी को लोकेशन क्या है, इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के अंदर माना जाएगा बिकॉज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, और उस केस के अंदर मुझे इंपोर्ट के ऊपर आरसीएम पे करना है। ये हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकली अवेलेबल गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 8। इंटरमीडिएट सर्विस में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा। ब्रोकर एजेंट अदर पर्सन व्हाट बाय वॉट एवर नेम एंड कॉल्ड, जो एक सप्लाई को ऑर्गेनाइज कराता है, यानी इंटरमीडिएट जो जो लोगों को जोड़ रहा है, जो दो लोगों के बीच में सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जुड़ा हुआ है, वो इंटरमीडिएट है। उस केस के अंदर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज आज की तारीख में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो हमने यहाँ पढ़ा। मगर इसको अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने प्रपोज करा कि इसको चेंज कर दिया जाए, बिकॉज एक्सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है। दो द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की जगह द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज की जगह इसको बोला गया है कि द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बना दिया जाए, बट ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट, प्लान अकॉर्डिंगली द एग्रीमेंट्स विच यू आर डूइंग। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में हमें पता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ये सारी सर्विसेज है। इसमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में आज की तारीख में अगर कोई आउटसाइड इंडिया से आकर इंडिया में कोई सर्विसेज देता है और वो अनरजिस्टर्ड बंदों को दे रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी उन कंपनीज को देना है जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज दे रही हैं। मगर अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपने जीएसटी नंबर उनको दे रखा है, तो उस केस में आरसीएम आपको पे करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, because location of recipient is the place of supply in the case of online information and data access or retrieval services. So that's all the things are। अभी बहुत और चीजें बची हैं जो हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं आशा जी अब क्वेरी लें और एक एक पार्टिसिपेंट्स का अनम्यूट करें और लेट्स टेक द क्वेरी एज यू विश।
एक बार So चैट that's बॉक्स से all. ले लेते It हैं। is mandatory. Yeah, please. और चैट बॉक्स में जिसकी क्वेरी अगर वहां इशू होगा देन फिर उसका एक एक करके अनम्यूट कर लेंगे ऐसे। Yes, yes. रेनू, आर यू अवेलेबल? यस यस यस। हाँ, तो थैंक यू आप सो मच सर। स्टार्टिंग से ले लो राइट। क्वेरीज ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। इट वाज रियली अ नाइस सेशन। मैं क्वेरीज स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेरी आशा मैम ने डाली हुई है। इफ अ होटल रेजेस मेरे पर्सनल अकोमोडेशन चैट पर वो इनवॉइस। डाला हुआ था, पार्टिसिपेंट का ये तो। अच्छा Sorry, ओके। please. शैल आई रीड इट आउट मैम? हाँ अंकित जी, क्या कंफर्टेबल है आपको? हाँ रीड हाँ, कर रीड कर लीजिए, रीड कोई कर दो इशू ये। नहीं, जैसे। Okay, okay. If a hotel raises accommodation invoice to the SEZ developer, what would be the place of supply and what GST would be charged on the invoice? CGST plus SGST or IGST? इस पे आईजीएसटी लगेगा। पीछे भी क्लैरिफिकेशन आई है, एसईजेड के लिए स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दी है, वो प्रेस रिलीज के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। आई विल शेयर विद यू आशा जी। और उसके ऊपर आईजीएसटी होटल ने चार्ज करना है, उस पर क्लैरिफिकेशन आई हुई है। Okay. And next query is if a tourist from Canada came in Delhi and he takes delivery of goods like imitation jewelry and gold या jewelry in Delhi on spot and tells us his or her address of Canada to mention in invoice, does this supply will be included in export and will नो it be नो exempted? नो नो नो। उनको Because क्या फैसिलिटी दी गई है? ये किसकी क्वेरी है? ये मैम ने पोस्ट की है। मे बी आशा मैम आपके ओके पर्सनल विंडो पे आया था क्या? ओके, बेसिकली उनको क्या फैसिलिटी दी गई है? आप जीएसटी चार्ज करो, आप उनको एयरपोर्ट के ऊपर रिफंड मिल जाएगा, सरकार ही रिफंड दे देगी। हम्म। ओके, वो अपना आपका इनवॉइस एक्सपोर्ट एयरपोर्ट पे कंसिडर दिखा नहीं है। सकते हैं। यस यस यस। ओके ओके। नेक्स्ट है रमनजीत जी की क्वेरी है। इफ वी स्टोर गुड्स एट पोर्ट वेयर हाउस इन अदर स्टेट विल इट बी पी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? पार्डन पार्डन। If we store goods at port warehouse in other state, will it be considered as permanent establishment and required for registration? देखिए, गुड्स अगर आप कस्टम के वेयर हाउस में स्टोर करते हैं तो वो कस्टम के अंदर माना जाता है, वो विद इन द मोमेंट माना जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक आपके हाथ में नहीं है। जनरली तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप गुड्स जब भी स्टोर कर सकते हैं जब आपका वो प्लेस रजिस्टर्ड है, और लॉ भी यही कहता है। बट अगर आपका कस्टम वेयर हाउस का मैटर है तो उसको अकॉर्डिंगली लुक फॉर करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग वहाँ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज आपने वो कस्टम के वेयर हाउस में छोड़ रखा है फॉर द फर्दर डिलीवरी टू फॉर द एक्सपोर्ट। रेनू 514 पे क्वेरी आई हुई है, क्या वो टेकअप हो गई है? प्रकाश जी की है। इवन दो मैम आरटीपी पेड टैक्स अंडर एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड इज नहीं मैम। स्टक एट कस्टम डिपार्टमेंट एज पोर्ट कोड इज रॉन्गली एंटर्ड सिंस 3 years। व्हाट कैन बी डन इन हाँ, दिस तो केस? उसके केस में रूल 96 आया हुआ है। मैं भी लड़ रहा हूँ एक दो रिफंड के केस में। पहले क्या हुआ है, देखो, दो चीजें आप समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी क्वेरी जिन्होंने भी पूछी है। इसके लिए सरकार ने स्पेसिफिक रूल में चेंजेस करे, पहले रूल में था ही नहीं। पहले मैंने विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आशा जी को एक्सपोर्ट करा, और वो किसी कारणवश मेरा पोर्ट कोड गलत हो गया, इनवॉइस नंबर गलत हो गया, वो रिफंड मेरा स्टक हो गया। तो मैं डिपार्टमेंट में लोकल वाले के पास जाता था, वो कहता था जी ये तो रिफंड आपको कस्टम से मिल गया, इसको हम नहीं देंगे। तो सरकार ने रूल चेंज कर दिया। सरकार ने कहा जी आपको रिफंड नहीं मिला, क्योंकि हाई रिस्क वालों को भी रिफंड नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। तो सरकार ने कहा आप जाओ अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर के पास, उसके पास रिफंड अप्लाई करो। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एक चैलेंज आएगा, उन लोगों को लॉ ही नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, स्टेट के अंदर खास तौर से बहुत दिक्कत है। तो आपको उनको लॉ समझाना पड़ेगा, उनको लॉ लिख के देना पड़ेगा, रूल 96 आपको लिख के देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, एक प्रॉब्लम और आएगी। आप खुद कह रहे हो कि 3 साल का पहले का केस है, तो जनरली एक्सपोर्ट के अंदर 2 साल के अंदर टाइम बारिंग है, आप रिफंड नहीं अप्लाई कर सकते। बट मैंने आपको एक कंडीशन ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन बताई थी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो शिपिंग बिल जिस दिन जनरेट हुआ, दैट वुड बी द डीम्ड एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ द जीएसटी।
तो हमको वो चैलेंज करना है। वो टाइम बारिंग है ही नहीं जी, वो हमारी गलती नहीं है। वो एप्लीकेशन हमने टाइम से फाइल ऑलरेडी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो दैट वुड बी चैलेंज। आई एम ऑल्सो डीलिंग, इफ आई विल गेट द सॉल्यूशन। मेरा भी अभी रिफंड नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया, मैं दोबारा अपील में जा रहा हूँ उसके लिए। तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट रिफंड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यस। का नेक्स्ट ले लो रेनू। Okay. So next query is Richa ji की query है, if employee purchase some software or subscription on behalf of company, further employee is reimbursed by the company, is company required to pay reverse charge RCM? Definitely, as per me, yes. Because ultimately, you are the receiver. Employee is taking reimbursement only because he is giving the services to that company, not he is giving. He has taken the services for that company. So, to buy, not to buy a litigation, it is suggested to pay the RCM and take the ITC. एक संध्या जी की क्वेरी रह गई है ऊपर 517 पे आई थी। इनवॉइस रेज्ड टू सिंगापुर and material dispatched in India and payment received in foreign currency. What will be the place of supply and will be considered as export and what will be the GST? Pardon, एक मिनट मैं इनवॉइस पढ़ लेता रेज हूँ, किया कहाँ है पढ़ेंगे? सिंगापुर, मटेरियल डिस्पैच कर दिया इंडिया से एंड पेमेंट रिसीव्ड फॉरेन करेंसी में, देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, वो तो एंड विल आपने इट बी अगर सिंगापुर, कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट? डेफिनेटली एक्सपोर्ट ही कंसिडर होगी। जब गुड्स आपने सिंगापुर भेज दिया, गुड्स के केस में तो प्लेस आउटसाइड इंडिया भेज दिया तो एक्सपोर्ट हो गई। संध्या जी आपका, हाँ मैम कर गुड्स लूंगी। सिंगापुर नहीं गए, गुड्स को इंडिया में है। अच्छा, अच्छा, दोबारा फिर बताएं एक बार, इनवॉइस आप रेज बोले किया गया प्लीज। है सिंगापुर के लिए और मैटर डिस्पैच हुए इंडिया में और फॉरेन करेंसी में पेमेंट हुई है, तो व्हाट विल द नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं नहीं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जिस स्टेट में आप डिलीवरी दे रहे हो उसी को मानो, और इंडिया। आपको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। यस यस, डेफिनेटली। इन केस ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी कि गुड्स आपके इंडिया से बाहर जाएं। अगर आपके केस में गुड्स सिंगापुर वाले खुद लेके जा रहे हैं तो आपको उनसे वो लेना है, कस्टम की एक्सपोर्ट कॉपी, और अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। बट ये श्योर कैसे होगा कि वो इंडिया से बाहर गए हैं? एक्सपोर्ट जब भी बाहर कहलाएगी जब वो इंडिया गुड्स में ही इंडिया है, से बाहर गए गुड्स हैं। इंडिया में है। हाँ, तो इंडिया में है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक्सपोर्ट है ही नहीं फिर तो। आप उस पर जीएसटी चार्ज कीजिए और जीएसटी लीजिए उनसे और पे कीजिए सरकार को। ओके तो सर। जीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी चार्ज होगा? इसके ऊपर देखिए, आपने जिस स्टेट में दिया है, अगर आप उस स्टेट में रजिस्टर्ड है सेम स्टेट में, तो सीजीएसटी जीएसटी, अगर अलग है तो आईजीएसटी। इसमें नॉर्मल प्लेस ऑफ रूल अप्लाई हो जाएगा। रेनू नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि ले लो। हमने देखो, अब हम संध्या जी लॉ पे आते हैं। हमने लॉ में क्या पढ़ा? लॉ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, रिसीविंग गुड इन इंडिया। इंपोर्ट में इंडिया के अंदर ला रहे हैं और एक्सपोर्ट के अंदर बाहर ले जा रहे हैं, बड़ा सिंपल। उसमें हमने ये नहीं पढ़ा कि वो कस्टमर कहाँ का है, कौन है, हमने पढ़ा? ये नहीं पढ़ा। तो अब आप खुद आंसर कर सकते हो आपकी क्वेरी का, क्या एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा। प्लीज। सर संध्या जी की एक और क्वेरी है, डिफरेंस ये अराइजिंग नाइन इन। सी वाली बाद में देखते हैं, पहले आज के टॉपिक ओके। वाली लेते हैं कि नाइन नाइन सी अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है वो। नहीं नहीं, इसलिए कोई बात उसको नहीं, अभी बिल्कुल स्किप लूंगा जी करते मैं। हैं। एक बार पहले बाकी ले मेरा लेते हैं, फेवरेट फिर इस टॉपिक पे आ है। जाएंगे। आई नो। तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस द टॉपिक। तो नेक्स्ट ले लो ठीक रेनू है। पहले। और कोई क्वेरी? एक रमनदीप जी और कुछ एक एफआईआरसी पे कोई डिस्कशन हो रहा है, तो हाँ अनम्यूट करके वो क्वेरी नीचे आ हम रहा ले है लेते हैं, मनोज क्या है। खत्री और जी का और रमनदीप जी का कुछ डिस्कशन चल रहा था एफआईआरसी पे। एंड एफआईआरसी सर इश्यूज देखिए, इज कमिंग लॉ के दीज अंदर डेज। ये लिखा हुआ है, लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। अब उसका आपको प्रूफ देना है। डिपार्टमेंट को कई बार एफआईआरसी नहीं भी है तो भी अगर आपका बैंक स्टेटमेंट पे लिखा हुआ आ रहा है ना कन्वर्जन, तो भी डिपार्टमेंट मान लेता है। बट अगर रिजिड हो जाता है तो आपको एफआईआरसी देनी पड़ेगी। हाँ, रमन जी आप प्लीज अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। पहले वाला तो या ये था जिसमें बोल रहे थे कि फॉरेन करेंसी इंडिया में लाना होता है। तो वी हम्म हैव अ केस, इनमें इंडियन कंपनी है जो कि 100% फॉरेन सब्सिडरी है।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दे आर रेजिंग द बिल अंडर द एलयूटी मॉडल। अब जो पेमेंट ओके। आती है ना, वो हम्म। हमारे बैंक अकाउंट में नहीं देते, वो सीधा वेंडर को पेमेंट कर देते हैं। तो ओहो। इस केस में क्या ये निकल पाएगा, एक्सपोर्ट कंडीशन मीट कर नहीं निकल पाएगा? पाएगा रमन जी, यू हैव टू चेंज अ ट्रेंड, यू हैव टू चेंज अ पैटर्न। ऑल राइट सर, वही था। और सेकंड ये था सर, जो आप बोल रहे थे कि 96B में जो आप कह रहे थे ना कि रिफंड अगर इतने दिन में पैसे नहीं आएंगे तो वापस करना पड़ेगा। तो इसमें जी जी जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ये है कि जो सेक्शन 16 है आईजीएसटी एक्ट का, उसके अंदर दे हैव ट्रीटेड इट फॉर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। रूल्स में उन्होंने लिख दिया कि विद पेमेंट वाले में भी एप्लीकेबल होगा रिवर्सल, पर एक्ट के अंदर 16 में वो उन्होंने ऑमिट किया हुआ है। और क्योंकि अभी पीछे जब देखो रमन अमेंडमेंट जी हुआ जी, था। रमन जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं देखो उतना मैं एक बार देख लूंगा जो आपका कंसर्न है। बट देखो सरकार की बड़ी सिंपल सी चीज है। आपने विद पेमेंट करा, ठीक है, विद पेमेंट के अंदर सर आपकी बात एक प्रॉब्लम और भी आएगी। आपने रिफंड तो दे दिया। अब मैं आपकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाता हूँ। आपने रिफंड लिया और आपने पे बैक कर दिया विद पेमेंट में, आपको आईटीसी कैसे आएगा वापस? सर वो तो है, क्योंकि इस पे हमारा केस लगा तो था वो एक। प्रॉब्लम जो है हाँ। वो भी नहीं, एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो हमने लिया था वो ये था कि सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी में अभी पीछे अमेंडमेंट आया था। तो उस हाँ अमेंडमेंट हाँ के अंदर उसी में ही आया है, उसी में आया है। उसमें ये लिख दिया, उन्होंने स्पेशली लिख दिया कि विदाउट पेमेंट पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा, पर उन्होंने अभी भी विद पेमेंट वाला मॉड्यूल उसमें ऐड नहीं किया, सेक्शन में ऐड नहीं किया। रूल में लिखा हुआ है, बस सेक्शन में हाँ अमेंडमेंट के बाद भी उन्होंने नहीं कैप्चर किया। तो वी टुक दैट ग्राउंड, तो रिलीफ तो आ गया था। तो मैंने कहा बस आपसे एक बार वेरी ओपिनियन ले गुड। लें इसमें भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर रिलीफ आ गया मैं एक बार चेक कर लूंगा, आपको जी जी। पर्सनली ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं चेक जी कर जी। लूंगा। एक एक प्लीज। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उस पर फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम्म। इसमें फॉरेन करेंसी डायरेक्टली बैंक में ही आनी चाहिए ना, मतलब अदर वे अराउंड तो नहीं चल पाएगा। तो तो ये जरूरी है पूरा ना, ट्रांजेक्शन आपको टैक्सेबल हो समझो। जाएगा? देखो आपके पास अगर फॉरेन करेंसी नहीं आई तो एक्सपोर्ट नहीं कहलाई जाएगी, मैंने ये पढ़ा है और सेक्शन भी यही कहता है। नहीं नहीं, फॉरेन करेंसी आई पर मेरे पास नहीं आई, मेरे वेंडर के पास गई। आपके पास नहीं है ना, आपके वेंडर के पास चली गई ना, तो हाँ, एफआईआरसी कभी होगी नहीं ना आपके पास नहीं आपके आई नाम की। करेंसी, बिल्कुल करेक्ट सर, करेक्ट। तो तो वो ये दिक्कत तो है ना फिर सर। ये तो फिर पूरी ट्रांजेक्शन ही टैक्सेबल हो जाएगी ना सर, ये तो एक्सपोर्ट से ही बाहर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, एंड वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सर गुलाटी जी का क्वेरी है, हाउ टू डील विद बेड डेट्स ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स एंड हाउ टू अप्रोच आरबीआई टू राइट ऑफ बैलेंसेस। देखिए सर, देखिए आरबीआई की ना कुछ लिमिट्स हैं जो एज एन नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नो दैट वो तीन तीन साल की एवरेज की 10% अलाउड है। अच्छा जी, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि 3 साल की टर्नओवर की एवरेज की 10% आप राइट ऑफ कर सकते हो। बट जीएसटी डिफरेंट चलता है, जीएसटी के अंदर राइट ऑफ अलाउड नहीं है। अगर आपने रिफंड लिया है और आपने एक्सपोर्ट बोला है तो आपको जीएसटी उसका वापस देना है, लॉ के अंदर भी आ गया है, बड़ा क्लियर है। सर एडिंग टू दिस सर, इसमें 96 जी। भी रिलीफ देता है सर। 96B में लिखा हुआ है कि Yes, अगर आरबीआई वेव 96B ऑफ कर दे में, तो। if you see the 96B section, it says हम्म। that provided या if the RBI has written off the requirement of realization of sale proceeds on merit, the refund paid to applicant shall not be recovered. So I just wanted to सर ask, वही मैं कह रहा हूँ। what is the procedure to approach the RBI सर to, आरबीआई अलाउ ही नहीं करेगा आपको 10% से ऊपर, तो and वैसे नहीं अलाउ why करेगा this सर। section is there? Why this para is there? If they have written this सर para, it must. आरबीआई In सर normal आरबीआई Para is circumstances, there. को RBI देखिए won't कि allow, It but means that कर there सकते. must be some provision in the RBI Act which would allow to the exporter to write off some amount. Otherwise, they would not have written this. आई सर एग्री सर, वो आरबीआई, 10% की बात कर रहे हैं ना सर, नहीं जो नहीं, मैं कह उसमें रहा सर हूँ दो, आपको सर। सर उसमें दो चीजें हैं, दो बार उसमें दो कंडीशन है राइट ऑफ की। मतलब एक तो आप जो कह रहे हो नॉर्मल कोर्स के अंदर वो भी है ईयरली उसका सेल्स का, Now, और एक 10% तो एडिशनल, आपका उसके लिए एक एडिशनल, you don't have to go हाँ, to the RBI. एक Your banker एडिशनल, would do it. नहीं नहीं, एडिशनली भी है सर। आप फेमा पढ़ोगे तो उसमें एडिशनली भी Yes, मिलता है राइट yes, ऑफ। तो आप बैंक अपने, yes. आप, हमने हर केस में भी सेम था, तो वी अप्रोच्ड आवर बैंक, वी गॉट अ सर्टिफिकेट कि आरबीआई हैज अप्रूव्ड द सेम, और उसका सेटलमेंट हो गया था। तो उस बट सर्टिफिकेट रमन के जी Then, जी बेसिस पे कितना so then you कितना have to अलाउ कर go दिया, to the परसेंटेज सर कितना go to अलाउ the कर रहा हमारे है RBI through केस, your जनरली? bank only. सर हमारे केस में सब्सटैंशियल अमाउंट था,
केमिकल का कुछ ओके, प्रॉब्लम था, मतलब केमिकल एक्सपोर्ट थे, तो वो उसमें बेसिकली रमन सब्सटैंशियल जी पता है, हाँ उसमें क्या होता है, Depending on कोई the अबनॉर्मल reason and कंडीशंस है। justification they allow, हाँ नहीं depends आई on हाँ fact तो to fact उसमें, basis. क्योंकि जब उसमें हम डिक्लेरेशन दे रहे थे तो उसमें एक ये नॉर्मल 10% वाला या 5% वाला था ईयरली का, और दूसरा अलग से भी था। तो हमारे केस में सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वॉल्व था, तो पर हम वी ओके, वर एबल टू टेक अ एनओसी फ्रॉम द बैंक। In that case, Now coming back to you have to GST, approach the RBI through your banker only. या आरबीआई तो जाता ही बैंकर के थ्रू है सर जनरली। नहीं तो उस केस में जनरली हाउ डू दे डू इट, मतलब लाइक इफ दे आर, सर वो इफ द आशा जी पेमेंट एक इज, टॉपिक कवर सर कराओ फेमा वाला, मैं वही वही मैं मैं भी कहती सर हूँ की क्वेरी का आंसर कि नहीं वी कर शुड पाऊंगा कम प्लीज। बैक टू जीएसटी बिकॉज आरबीआई का प्रोसेस गुलाटी सर, वी विल गुलाटी नॉट सर बी। जी, मतलब देखिए आरबीआई जाना, जो मैं जितना मैंने करा है सर, वो एडी बैंक के थ्रू जाना पड़ता है, जो आपका एडी बैंक है हम्म, उसके थ्रू आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द राइट ऑफ। बट सीधे भी आरबीआई जा सकते हो एज पर माई नॉलेज, बट वो कोई एक्सपर्ट से हम आपको कनेक्ट करा देंगे और बता देंगे उसको। प्लीज आशा जी आगे। ऑल राइट, हाँ तो थैंक यू। कमिंग बैक टू जीएसटी, जीएसटी में उसका क्या रहेगा अगर वो नहीं आया? इट मीन्स कि सिंपली रिवर्सल वहां पे देखो, रहेगा, जो रिफंड नहीं मिलेगा, जो वो रमन क्लियर जी कर कह रहे दो। हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग उस पर सरकार रिफंड वापस मांगेगी, एक्सपोर्ट भी वापस मांगेगी। बट क्योंकि 10% अलाउड है, जनरली तो 10% तो अलाउड है, अब वो कोई बड़ा अमाउंट है, स्पेसिफिक आरबीआई ने परमिशन दी है, तो कोई ना कोई रीजन होगा, आई हैव टू चेक इट आउट। और वो अगर लॉ के अंदर है मैं चेक करके एक बार बताऊंगा। तो तीनों नेक्स्ट ले लो क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रकाश जी की क्वेरी है, पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, पेमेंट मेड रिलेटेड कंट्री करेंसी टू इंडियन टूर ऑपरेटर। पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, पेमेंट मेड रिलेटेड कंट्री करेंसी टू इंडियन टूर ऑपरेटर, मे बी देखो, प्रकाश जी। पैसेंजर सर्विसेज के केस में जो पैकेजेस हैं उसके स्पेसिफिक पीओएस देखना पड़ेगा आपको, और वो पीओएस के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड होगा प्लेस आपका। अगर सपोज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई इवेंट का पैसा ले रहे हो और आप फ्लाइट का पैसा ले रहे हो, तो सब चीजें अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगी डिफरेंटली, तो उसी के अकॉर्डिंग देख के आप आगे बढ़े। मीन्स इस केस में व्हाट ही सेइंग कि जिस भी कंट्री से पैसेंजर आ रहे हैं वो अपनी उस कंट्री की करेंसी इंडियन टूर ऑपरेटर को दे रहे हैं। हाँ ठीक है। बाकी प्रकाश सर आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है यहाँ पर, हाँ, तो इफ यू कुछ आर मिसिंग लग रहा ऑनलाइन तो यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। यस सर, है। सर आपकी आपकी वॉइस आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही सर, है, राइट? वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही सर वॉइस। वी कांट हेयर यू, आप या तो एक बार वापस म्यूट करके अनम्यूट कीजिएगा। नहीं आई सर, वॉइस नहीं आई, वॉइस नहीं आ रही सर। एक बार आप सर फिर टेक्स्ट दोबारा से डाल दीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन, वी विल टेक इट अप। बाय दैट टाइम दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं रेनू। बताएं कोई और क्वेश्चन रह गया है एक तो। ये आप क्वेश्चन है संध्या जी का, 50% एलयूटी एंड 50% विद पेमेंट ऑफ टैक्स, सो वी डोंट हैव टू पे टैक्स, व्हाट इज द क्वेश्चन देखो, हियर? बड़ा सिंपल सा है। आप सुबह, आपका मन करा आपने एलयूटी में शिपमेंट निकाली, आपका उसके सेकंड में मन करा कि आपने विद पेमेंट करा, अलाउड है। इनवॉइस बेस है, इनवॉइस बेस है। एक इनवॉइस एलयूटी में, एक इनवॉइस विद पेमेंट, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. Raman ji, क्या you want to ask something else also? Or you have asked already? Because हो गया, रमन जी से हो गया डिस्कशन। प्रकाश जी का चैट बॉक्स में आए। कोई नहीं, someone, प्रकाश जी को मेरा नंबर शेयर कर प्रकाश जी की दीजिएगा, वो हाँ कॉल कर वॉइस नहीं आ लेंगे। रही थी, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है आरसीएम इशू के रिगार्डिंग वो बात करना चाह रहे थे। माई नंबर इज 9899975474। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, प्रकाश जी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेरी, वी विल डिस्कस एंड आंसर यू। दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल हैप्पी टू आंसर द क्वेरी। तो प्लीज 9C वाली क्वेरी सॉल्व कर दीजिए, छोटी सी है। हाँ प्लीज बताएं, हाँ प्लीज सब सुन अब रहे वो हैं ले प्लीज। लेते हैं। बताएं संध्या जी संध्या जी। आप बता ही दीजिए, वो आई थिंक काफी ऊपर चली गई है, मैं आई एम स्टिल सर्चिंग। Let me read. Difference is हाँ मैंने इसीलिए arising in रेणु जी GST आपको तो काम दे 9C दिया था। table 12.
9C हाँ जी, टेबल प्लीज 12 में पूछिए डिफरेंस है पूछिए। ड्यू टू प्रीवियस ईयर जीएसटी क्रेडिट. वो What आएगा, would be the solution for the difference? वो आएगा। Yes, आपको लिखना पड़ेगा जो पैरामीटर इस बार 9 का बनाया है और जो प्रीसीडिंग ईयर उन्होंने ऊपर लेस कर दिया है, उसकी वजह से वो डिफरेंस आ ही रहा है। हर सिचुएशन में आएगा ही आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लिख दें नीचे अनरिकंसाइल्ड में, दिस इज अ प्रीसीडिंग ईयर आईटीसी विच वी हैव क्लेम ड्यूरिंग द ईयर, और वो 6A1 के अंदर मेंशन होगा सेम अमाउंट आपका जो डिफरेंस आ रहा है। सर अगर उसको ब्लैंक रहने दे तो कोई इशू है? 23-24 का, किसको? 23-24 का जो है। देखो इश्यू तो कुछ नहीं है। आपको असेसमेंट करानी है क्लाइंट की, नहीं करानी? करा लो ना, दिक्कत क्या है? तो जो इंस्ट्रक्शन कह रहा है, देखो क्लाइंट हमेशा पता है क्या कहता है, अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे, कुछ गलत हुआ और डिपार्टमेंट आके कहता है कि जी इन्होंने तो फॉलो ही नहीं करा, ये लिखा हुआ था, तो क्लाइंट आपकी भलाई नहीं देखने वाला। तो जो इंस्ट्रक्शन कह रहे हो उसे फॉलो करो। आप लिखो 9C के अंदर रिमार्क में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, I think एनी all मोर? queries are answered. हाँ, चैट बॉक्स में तो भी कोई Yes, yes, all unanswered query questions are नहीं है। answered. Right, We have right. also given the numbers, so we will answer the query as and when I receive And the आप call अपनी of the client. प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज व्हाट्सएप ड्रॉप जरूर करें इंस्टेड ऑफ कॉल, बिकॉज शायद मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊँ कई बार। तो आप एक बार व्हाट्सएप ड्रॉप जरूर कर दें। अंकित जी आप अपनी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे? यस यस, आई विल शेयर। हाँ, तो वो दैट प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट्स, तो उसमें भी नंबर है आपका, तो दे कैन कनेक्ट whosoever wants to. So with this, we will proceed for the formal vote of thanks. Renu, please do this honor. Sure, ma'am. Thank you so much. I would like to express my heartfelt gratitude for Ankit Gargji for an insightful and valuable session. Sir, your expertise, explanations, and examples have helped us a lot in understanding the concepts better. I would also like to thank CA Asha Sharma ji and GWCA for providing us this opportunity and supporting and conducting these webinars. Your encouragement and commitment to continuous learning truly make a difference. And a special thanks to all the participants for your active involvement throughout the session. Your energy made the webinar lively and productive. Once again, thank you all for being part of this webinar. Looking forward to meeting you all on Monday now. Thank you. Have a Thank wonderful you, time. thank you, Thank you. thank you Thank you so everyone. much. Thank you so much, Ankit ji, and thank you each participants. मंडे को लास्ट सेशन है सीरीज का Right. ऑन दी प्रैक्टिकल कि कैसे जनरेट कर सकते हो आप ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल वगैरह, क्योंकि इसका भी एक हमारे पास स्पेशल आया था रिक्वेस्ट कि उसको प्रैक्टिकली बता दें क्या कौन सी यूटिलिटी होती है, कौन सा कैसे होता है, तो दैट विल बी डन। और कुछ भी क्वेरीज होंगी दैट कैन ऑल्सो बी टेकन अप, तो डू जॉइन अस। थैंक यू so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. thank you. Thank you I all. will be ending the meeting today. Thank you.